Let's do some few numericals on Young's double slit experiment, right? Ydse, correct. Young's double slit experiment. In the question, it is given laser light of wavelength 640 nanometer, right? तो जो लाइट यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना है 640 नैनोमीटर दैट मींस 640 into 10 to the power minus 9 meter, correct? हाँ. है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा. Pair of slits produced an interference pattern in which bright fringe are separated by 7.2 mm. मतलब Okay. फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, राइट? ब्राइट ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 mm, ठीक है? Calculate another the wavelength of another source of light which produces same interference pattern, right? Which produces interference pattern separated by 8.11, right? हमने 640 नैनोमीटर की एक लाइट ली जिसमें जो फ्रिंज का ब्राइट फ्रिंज का जो सेपरेशन है वो कितना आया? सेपरेशन इज 7.2 mm, राइट? Yes. सेपरेशन दे दिया उसने 7.2 mm, राइट? Okay. वो पूछ रहा है दूसरा एक वेव है, सेकेंड वेव, उसका वेवलेंथ निकालो, जबकि उसी में सेपरेशन कितना होगा? 8.1 mm दिया हुआ है, राइट? Okay. अंडरस्टूड? सो ये जो है सेपरेशन किसके बीच में? ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब टू ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय दिस मैटर, राइट? Yes. सेपरेशन बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस, जो डार्क और ब्राइट का जो पैच आता है उस पे, राइट? Okay. लेकिन नहीं तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? What is the normal formula for fringe width? Fringe width formula, what is the formula for fringe width? Direct one formula basis we are coming, right? Beta formula, fringe width formula, what we got? What is the formula for fringe width? That is equal to separation between screen and the source, right? Capital D. Yes. Into wavelength. Yes. Divided by Small d. ब्राइट फ्रिंज के बीच में गैप, राइट? Yes. तो एक बार अगर एक्सपेरिमेंट फिक्स हो गया तो डी इज फिक्स एंड स्मॉल डी इज आल्सो फिक्स. सो ये जो फ्री ट्रीथ का डेफिनेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैम्बडा के ऊपर डिपेंड करता है ना? हाँ. Understood. So from there directly you can find. Yes or no? B is directly proportional to. So we can write beta 1 by beta 2 is equal to lambda 1 by lambda 2. Correct? Here in this question is asking about lambda 2. So that is beta 2 by beta 1 into lambda 1, right? So जो पहला था कितना था? 8.1. ये जो था कितना था? 7.2 into 640 nanometer, right? So lambda 2 is how much? 720 nanometer, correct? Okay. Understood this thing? Yeah. Let's see another varieties of question, right? Question में ऐसा दिया हुआ है, two slits are made 1 millimeter apart, right? Two slits are made, मतलब the distance between two slits, you know, in the experiment, right? Okay. So two slits, और ये एकदम स्लिट के बीच में जो आता है वो ब्राइट फ्रिंज था ना? Okay. और यहाँ पर आता था डार्क, यहाँ पर आता था डार्क, राइट? हाँ. देखिए नहीं तो उसने जो दिया two slits are made of 1 millimeter apart, that means he gave the value of small d, right? 1 millimeter, correct? And screen is placed कितने दूरी पर? ये कैपिटल डी है ना, 1 मीटर आवे. कैपिटल डी इज गिवन 1 मीटर आवे, राइट? तो ये दिया हुआ है व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड. मतलब हमने एक ऐसा वेव यूज किया लाइट जिसका वेवलेंथ कितना है? 500 नैनोमीटर, राइट? और उसने पूछा है कि फ्रिंज सेपरेशन कितना होगा. व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन? Okay. कैन वी पुट द डायरेक्ट फार्मूला? व्हाट इज द फार्मूला फॉर फ्रिंज सेपरेशन? Capital D lambda by small d. Capital D lambda by small d, right? That is beta is equal to how much? Beta is equal to
wavelength into capital D by small d, right? wavelength कितना दिया 500 नैनोमीटर, मतलब 500 10 to the minus 9, कैपिटल डी कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 लिख लेते हैं, बाय स्मॉल डी कितना दिया 1 मिलीमीटर, 1 millimeter means how much meter, 10 to the minus 3 meter, right? Solve, minus 3 will go up, plus 3 minus 6, then that will be 5 into 0 cancel 10 to the minus 4 meter, right? So it will be 0.5 mm. Understood? Understood ना? Yes, sir. कभी कभी एक बार में वो जो फ्रिंज विड्थ में कुछ एक एंगुलर विड्थ के बारे में पूछता है, राइट? यूजुअली आस्क्स अबाउट एंगुलर विड्थ। तो मतलब एंगुलर विड्थ मतलब क्या है, देखते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, राइट? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, राइट? wavelength is given 600 nanometer, right? That is 600 into 10 to the power minus 9 meter, right? Angular width of the fringe formed on the distant screen, angular width उसने दे दिया theta is equal to 0.1 degree, right? angular width दिया हुआ है कभी, ठीक है? उसने पूछा है find the spacing between the slits, उसने ये पूछा है find the spacing between the splits. Find the spacing between the splits, right? Understanding? sir. How to find the spacing between the slits? तो यहाँ पर उसने angular width दिया हुआ है, right? Yeah, so will we use a sin theta is equal to n lambda, that formula? Yes. Actually, थीटा जो है मतलब डिग्री में दिया हुआ है, हाँ, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे ठीक है ना? एंगुलर विड्थ जो है ना, एंगुलर विड्थ का एक फॉर्मूला भी है, राइट? yes, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एंगुलर विड्थ आल्सो, पाई लैम्बडा बाय डी, राइट? okay, Polarization angular width formula, that is you can see there theta is equal to lambda by d, right? Okay, because sin theta perpendicular, you take very small angle theta, sin theta is equal to theta, right? From there you will get the expression theta is equal to lambda by d. तो यहाँ से हमें d निकालना है, d is equal to how much, lambda by theta. तो यहाँ पर जो थीटा है वो डिग्री में दिया हुआ है, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, राइट? थीटा इज इक्वल टू 0.1 डिग्री, मतलब तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, 1 डिग्री इज पाई रेडियन, राइट? तो 0.1 डिग्री जो है वो कितना रेडियन होगा, 0.1 इंटू पाई बाय 180, राइट? रेडियन, करेक्ट? सो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 1800 रेडियन, करेक्ट? yes sir. तो अभी चलो डालते हैं, तो डी का वैल्यू क्या होगा अभी, 6 into 10 to the power minus 7 divided into पाई बाय 1800, तो 1800 ऊपर ले जाते हैं, डिवाइड बाय पाई, राइट? 3.14 divided by 7, so it will be approximately 3.44 into 10 to the power minus 4 meter, correct? Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल जो दिया हुआ है, राइट? यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स दिया हुआ है 0.15 मीटर, सॉरी मिलीमीटर, राइट? वेवलेंथ जो लाइट का दिया हुआ है 450 नैनोमीटर, करेक्ट? एंड स्क्रीन का जो डिस्टेंस है स्लिट के बीच में, दैट इज 1 मीटर गिवन, राइट? तो उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज पूछते वक्त वो क्या पूछ सकता है, फर्स्ट पूछ सकता है, सेकंड पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, राइट? गेटिंग ना? Okay. उसी टाइम में वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज भी पूछ सकता है, सेकंड भी पूछ सकता है, या nth भी पूछ सकता है, राइट? Yes. लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा अगर कुछ नहीं पूछा है तो ओनली लैम्बडा डी बाई डी, करेक्ट? गेटिंग ना? Yes. और सेंट्रल मैक्सिमा का पूछा मतलब n इज इक्वल टू, देखो अगर उसने पूछा कि अगर हमने ब्राइट फ्रिंज के बारे में पूछा, राइट? nth ब्राइट फ्रिंज के बारे में पूछा, nth ब्राइट भी निकालना है और डार्क भी निकालना है, राइट? करेक्ट, ठीक।
तो उस केस में क्या करेंगे हम? नॉर्मली अभी देखो सारे दिया हुआ है, सो दैट इज फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा अगर पूछा है तो दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा d बाय d, राइट? Okay. क्या है? डिस्टेंस ऑफ एथ ब्राइट फ्रिंज, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth bright fringe, right? Hmm. Nth bright fringe from central maxima. From central Okay. maxima. From central maxima, right? That is Okay. equal to n lambda capital D by small d, correct है ना? Hmm. D दिया हुआ 1 और ये दिया हुआ 0.5, राइट? Hmm. अगर ऐसा पूछा डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल से मान के चलो, जब हम देखते हैं डायग्राम पे, जस्ट टू रिमेम्बर, अगर यहाँ पर होता था ब्राइट, राइट, फिर यहाँ पर डार्क होता था ना, Hmm. फिर नेक्स्ट यहाँ पर ब्राइट होता था, यहाँ पर डार्क होता था, राइट? यहाँ पर हमने ले लिया ब्राइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर अगेन ब्राइट, यहाँ पर अगेन डार्क, यहाँ पर अगेन ब्राइट, राइट? वो पूछ रहा है सेंटर से, राइट? सेंटर से उसने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, है कि नहीं? सेंटर से कितनी दूरी पर है दोनों ब्राइट फ्रिंज, मतलब ये डिस्टेंस हम निकालते थे, ये डिस्टेंस हम निकालते थे, राइट? Okay. तो सेंटर से जब निकालेंगे ऊपर से जितना नीचे जितना तो डबल हो जाएगा ना n की जगह में। Yes, sir. कुछ नहीं पूछा, मतलब पहला पूछा है, राइट? सो दैट विल बी 2 होल इनटू लैम्बडा की जगह में डाल दिए 450 into 10 to the minus 9 इंटू डी की जगह में 1 डाल दिए बाय स्मॉल डी जो है दैट इज 0.15 मिलीमीटर है, तो 10 to the minus 3, राइट? अंडरस्टूड ना? Okay. तो इट इज 6 into 10 to the minus 3 मीटर, that is equal to 6 mm, right? Hmm. Understood? Okay. अभी डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज पूछेंगे, राइट? Yes, sir. उसने अभी नेक्स्ट में पूछा है डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, राइट, फ्रॉम Yeah. सेंट्रल मैक्सिमम, राइट? So that is equal to how much? Formula 2n minus 1 into lambda d by d, 2d, right? Hmm. So that is equal to 2 into 2 minus 1 into 450 into 10 to the power minus 9 into 1 divided by 2 into 0.15 into 10 to the power minus 3, right? So पूरा इसको सॉल्व करके आपको Okay. मिलेगा 4.5 mm, right? Okay. अच्छा, यहाँ पर अगर अगर हम कभी भी स्क्रीन को थोड़ा दूर कर दिए, राइट, तो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज का क्या फॉर्मूला है? बी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा डी बाई डी, राइट? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, स्क्रीन का सेपरेशन हमने बढ़ा दिया तो Yes. फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा ना? Yes, sir. गेटिंग और नॉट? Huh. अंडरस्टूड दिस वन? Yes. Students, another type of question ऐसा दिया हुआ है, बीम ऑफ लाइट कंसिडरिंग टू वेवलेंथ्स, एक 650 नैनोमीटर का और एक 520 नैनोमीटर का, Hmm. जिसको यूज किया गया टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDC. Least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths coincide, right? So for the least distance for the fringes to coincide, right? Coincide के लिए उनके बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? डेप 1 होना चाहिए ना? लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट? क्योंकि आगे आगे तो वो हाँ, sir. कोइंसाइड करते जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी तो जाके मिलेंगे दोनों, राइट? And in this question you see, अगर पहला वेवलेंथ दिखे लैम्बडा 1 is greater than lambda 2, right? Hmm. है कि नहीं? तो अगर अगर हम देखें कि Right. ब्राइट फ्रिंज जो है
वो मान के चलो n1 जो है वो n में मिल गया, राइट? तो दूसरा कितने में मिलना चाहिए? नेक्स्ट पे n+1 पे, राइट? कोइंसाइड करने के लिए, हाँ सर। है ना? तो अगर हम अभी अभी अगर गैप निकालेंगे, अगर yn निकालेंगे, मतलब yn जो है for lambda 1, right, that should be equal to yn+1 into lambda 1, right? lambda 2 के लिए नेक्स्ट में मैच करेगा, राइट? तो ब्राइट फ्रिंज का क्या फॉर्मूला है? एन डी लैम्बडा 1 बाई डी, ठीक है? नहीं, दैट शुड बी इक्वल टू n+1 into d lambda 2 by d, करेक्ट? ये कंडीशन में दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, करेक्ट? ओके। सो सारे कैंसिल हो गया, बस इतना आया, n lambda 1 is equal to n+1 into lambda 2, राइट? दैट इज n is equal to कितना आ गया अभी? lambda 2 by n कॉमन ले लेंगे, lambda 1 minus lambda 2, right? 520 divided by 650 minus 520, correct? So that is n value is equal to 520 by 130, right? 13 4 j 52 4, correct? ठीक है नहीं? यस। तो ये जो आया हमारा, तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? n कितना आ गया? 4 आ गया, राइट? तो जब n इज इक्वल टू 4 आ गया, d दिया हुआ है कितना? 120 दिया हुआ है ना d, और ये कितना दिया हुआ है? 2 mm दिया हुआ है, राइट? n कितना आ गया? 4। तो सबसे छोटा कौन था? 520 छोटा था ना? ओके। तो उसी का ही y मिनिमम निकाल देंगे, राइट? अगर उसने पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, राइट? तो y मिनिमम मतलब n d लैम्बडा 1 बाई d, राइट? ओके। सो n जो है 4 आ गया, d जो है कितना आया? 120 सेंटीमीटर ना? स्मॉल d जो है कितना? अच्छा, कैपिटल डी है 120 सेंटीमीटर, राइट? 120 इंटू 10⁻², करेक्ट? है ना? इंटू 6.650 था ना? लैम्बडा 1 जो था, लैम्बडा 1 कितना था? 650 था ना, सबसे छोटा, राइट? 650 मत दिखो, 650 टू द पावर -9 है, वो 520 टू द पावर -9 है, जो माइनस में है मतलब 650 छोटा है, राइट? यस। कीप दैट ऑन, स्टूडेंट्स यहीं पे 520 डाल देते हैं मिनिमम सोच के, राइट? 2 mm मतलब 2 into 10⁻³ राइट? So that is y minimum is equal to 1.56 into 10⁻³ meter, right? Correct. So that is y minimum is equal to how much? 1.56 mm, right? ओके। यही है, करेक्ट? यस। तो इस तरह की क्वेश्चन आया तो जस्ट कीप इन माइंड इस तरह की अप्रोच लेना है, राइट? और एक जो कहीं पे एम्पलीट्यूड की तरह क्वेश्चंस देता है, जस्ट कीप इन माइंड वो डायरेक्टली हो जाएगा, राइट? एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट? So a1 plus a2 का स्क्वायर divided by a1 minus a2 का स्क्वायर, right? That is 25 by 9, correct? So that is a1 by a2 is equal to 4 by 1, correct? यस सर। मतलब कहीं पे अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसी मेथड पे एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, मैक्सिमम जो भी दिया हुआ है उस मेथड पे कर सकते हो, राइट? बाकी जो क्वेश्चन आएगा वही डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के साथ ही जुड़ा होगा, राइट? और कहीं पे अगर एंगुलर स्प्रेड पूछा तो वेवलेंथ बाय एम्पलीट्यूड कर देना, ठीक है? मतलब एम्पलीट्यूड दिया होगा और डिस्टेंस दिया होगा, राइट? वेवलेंथ भी दिया होगा, पूछा होगा ब्राइट बैंड के बीच में क्या है, एंगुलर स्पीड क्या है, ठीक है? और कहीं पे थीटा दिया तो हमने क्वेश्चन देख लिया, एंगुलर विड्थ कभी कभी देता है क्वेश्चन में। अभी जो बोल रहे थे sin θ1 इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, जो बोल रहे थे, राइट? दैट इज फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा कैन बी इक्वल टू लैम्बडा बाई डी, राइट? किया ना हमने अभी? So these are the numerical type questions that you used to come on this chapter, right? ठीक है? तो
हो जाएगा इसके न्यूमेरिकल्स, यू जस्ट गो थ्रू द बुक्स एनसीईआरटी, ठीक है।